Hello students, this is Srishti Singh and today we are going to discuss about more topics of chapter first business trade and commerce. In my previous video, we already discussed about the definition and the meaning of business and also the characteristics of business. So firstly, we revise that topic and after that we discuss more topics of this chapter. So what is business? Firstly, we introduce all human beings, wherever they may be, require different type of goods and services to satisfy their needs. Business is a major economic activities in all modern society concerned with production and sale of goods and services required by the people. It aimed at earning money by satisfying human demands. जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं दे मे बी रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उन्हें रिक्वायरमेंट पड़ती है, दे नीड गुड्स, उन्हें रिक्वायरमेंट पड़ती है सर्विसेज की टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. सो बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि जितने भी पीपल हैं उनकी डिमांड्स को फुलफिल करता है एंड अर्न मनी, और मनी को अर्न करता है एंड also satisfy human demands. So business is the word which meaning is busy. मतलब business का मतलब ही है busy रहना, busy in all activities like production, purchase, selling. So business is an economic activities and also it involved production of goods and services and also earned money or earned profit while satisfying human demands in the society. So various characteristics of business. First is business and economic activities. Next, production and procurement of goods and services. Sale or exchange of goods and services. Dealing in goods and services on a regular basis. Profit earning, uncertainty of earning, and element of risk. So these are the various characteristics of business we already discussed. Now, in next topic, we discuss about business profession and employment. We already know about business. Now what is profession? Profession means the capability, like कोई भी अगर किसी भी पर्सन में कोई कैपेबिलिटी या कोई टैलेंट है तो वो उसका प्रॉपर यूज़ करे और उससे अर्न करे मनी. लाइक इसमें हम प्रोफेशन में हम गुड्स के साथ डीलिंग नहीं करते हैं, ना प्रोडक्शन करते हैं, ना सेलिंग करते हैं. इसमें सर्विसेज के साथ डील करते हैं. कोई भी बंदा जिसके पास, कोई भी पर्सन जिसके पास अपना कोई ओन टैलेंट है तो वो उसके बिहाफ पर मनी अर्न करता है, सर्विसेज देता है एंड इन रिटर्न ही गेट मनी. एंड इन एम्प्लॉयमेंट में हम किसी के अंडर में वर्क करते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं एंड इन रिटर्न वी गेट सैलरी. सो now we discuss about the difference between business profession and employment. First, mode of establishment. Mode of establishment means कि कैसे start करते हैं, how we start our business. So entrepreneurs decision and other legal formalities if necessary. तो किसी भी business को start करने से पहले there is a requirement to discuss between the partners. If the single person is there तो वो डिसाइड करता है एंड इन्वेस्ट मनी एंड सम फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर देयर लाइक पार्टनरशिप डीड, एग्रीमेंट एंड सम गवर्नमेंट प्रोसेस. सो इन सब फॉर्मेलिटीज़ के बाद बिजनेस स्टार्ट होता है. नेक्स्ट, इन प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. किसी भी प्रोफेशन में स्टार्ट करने से पहले हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और मेंबरशिप. नेक्स्ट, इन एम्प्लॉयमेंट में स्टार्ट होने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेटर की ज़रूरत पड़ती है एंड सर्विस एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क. नेचर कैसा है? प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक मीन्स वी प्रोवाइड while doing production the goods and services to the public to satisfy the need and demand of the public and in return we earn profit. And in profession, rendering of personalized expert service means we provide services, we render our services to the persons. Next, performing work as per service contract and rules of service means in employment according to the service contract and according to the work we perform our work. हमें जो भी वर्क मिलता है, जो भी हमारे सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, जो भी रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ता है. नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन. नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी.
and in profession qualification, expertise and training in specific field as prescribed by the professional body is must. मतलब इसमें qualification की भी ज़रूरत पड़ती है and expert होना बहुत ज़रूरी है and training भी बहुत ज़रूरी होती है in profession and in employment क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉय मीन्स जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंड ऑल्सो ट्रेनिंग भी ज़रूरी है. रिवॉर्ड और इन रिटर्न मीन्स रिटर्न में हमें क्या मिलता है. इन बिजनेस वी अर्न प्रॉफिट एंड इन प्रोफेशन वी गेट फी एंड इन एम्प्लॉयमेंट वी गेट सैलरी और वेजेस. कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट ही कैपिटल से होता है तो एज पर द साइज एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल. लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन प्रोफेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड इन एम्प्लॉयमेंट नो कैपिटल रिक्वायरमेंट. रिस्क प्रॉफिट और अनसर्टेन मीन्स इट इज़ नॉट सर्टेन कि हमें इतना प्रॉफिट होगा. सो प्रॉफिट्स अनसर्टेन होते हैं और इरेगुलर होते हैं एंड रिस्क इज प्रेजेंट. बिजनेस में रिस्क भी होता है. नेक्स्ट प्रोफेशन में रिस्क फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन. हम फी चार्ज करते हैं प्रोफेशन में तो वो जनरली रेगुलर भी होती है और सर्टेन भी होती है. कुछ रिस्क होता है. नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड होता है और रेगुलर पे होता है. हमें रेगुलरली सैलरी मिलती है. इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है. ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मीन्स अगर हमें अपनी ओनरशिप किसी को ट्रांसफ़र करती है तो विद सम लीगल फॉर्मेलिटीज़ वी कैन ट्रांसफ़र आवर ओनरशिप हम. लेकिन प्रोफेशन में अपना टैलेंट किसी को नहीं दे सकते तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम ट्रांसफ़र कर सकें. ऐसा ही सेम एम्प्लॉयमेंट में. कोड ऑफ कंडक्ट टू नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड. Professional code of conduct is prescribed and norms of behavior laid down by the employer are to be followed. Like आचार संहिता हिंदी में कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट. तो बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. प्रोफेशनल में कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाता है एंड इन एम्प्लॉयमेंट इट इज़ ऑल्सो देयर. An example of business professional employment is in business like shop, factories and profession, legal, medical profession, chartered accountant, CA, CS वगैरह. एंड एम्प्लॉयमेंट जॉब इन बैंक कहीं पे भी आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ETC. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट बिजनेस एक्टिविटीज़. बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं. फर्स्ट इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स. इंडस्ट्रीज़ 3 टाइप में होती है. हम लिटिल बिट इंट्रोड्यूस अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है. हम इस चार्ट के थ्रू बिजनेस एक्टिविटीज़ को और अच्छे से समझ पाएंगे और हम लर्न करने में भी ईजी रहेगा. तो इंडस्ट्रीज़ 3 टाइप से होती है. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. प्राइमरी अगेन 2 टाइप से डिवाइड है. एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक. सेकेंडरी अगेन 2 टाइप से डिवाइड है. मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन. एंड मैन्युफैक्चरिंग अगेन 4 टाइप से डिवाइड है. एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग. टर्सरी इंडस्ट्रीज और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ऑलमोस्ट सेम होते हैं क्योंकि टर्सरी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं सर्विसेज पे. इन टर्सरी इंडस्ट्रीज वी प्रोवाइड सर्विसेज टू आवर पीपल. जितने भी हमारी सर्विसेज होती हैं हम लोगों को देते हैं लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग वगैरह. सो नेक्स्ट कॉमर्स. कॉमर्स is of 2 type, trade and auxiliaries to trade. What is the meaning of trade? Trade means व्यापार. ट्रेड इज ऑफ 2 टाइप अगेन, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल में आ जाता है आपका होलसेल और रिटेलर. एक्सटर्नल में आ जाता है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट. नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. अगेन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है. वी प्रोवाइड सर्विसेज. इसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस वगैरह. ये हम आगे पढ़ेंगे. तो ये पूरा चार्ट हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए. इससे हम आगे हमें जितनी भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं लाइक इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं प्राइमरी, तो उसको हम इजीली लर्न रख सकते हैं. तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ लाइक इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स एंड बिजनेस. बिजनेस हम अच्छे से पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट रहता है इंडस्ट्रीज़. इंडस्ट्रीज़ क्या होता है. प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इस इंडस्ट्रीज़ में हम क्या करते हैं. मेनली प्रोडक्शन करते हैं एंड प्रोसेसिंग ऑफ सर्विसेज. सर्विसेज की प्रोसेसिंग करते हैं एंड प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का. इट इज़ कंसर्न विद चेंजिंग द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट. हम किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्म लाइक रॉ मटेरियल से उसे फाइनल फिनिश्ड गुड्स तक उसे चेंज करते हैं. फाइनल गुड्स तक उसे चेंज करते हैं. रॉ मटेरियल लाइक हमारे पास वुड है, वुड से हम चेयर बना रहे हैं, वुड से हम सोफ़ा बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं. तो वुड हमारा क्या है, लकड़ी एक रॉ मटेरियल है. तो हम रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तक, यूज़फुल गुड्स तक उसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं. वही हमारी इंडस्ट्रीज़ है. इट गिव्स बोथ यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट. ये
गुड्स को, इस प्रोडक्ट को यूटिलिटी मतलब वी यूटिलाइज दैट प्रोडक्ट, इतना चेंज कर देती है उसकी फॉर्म को कि हम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ क्लासिफाइड द फॉलोइंग. ये क्लासिफाइड कैसे है? इंडस्ट्रीज 3 टाइप से होती हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड टर्शरी. फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज अगेन डिवाइडेड इन 2 टाइप, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्रीज. तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? प्राइमरी फर्स्ट, सो एक्सट्रैक्टिव ऑफ एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. पहला तो जितनी भी प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं ये डील ही नेचुरल रिसोर्सेज के करती हैं. जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो नेचर से हैं, नेचर में है, नेचर से मिले हुए हैं, लाइक हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इन सब से ये डील करती हैं. और इसके अलावा आपका आ जाता है जितने भी हमारे कोल हैं, मिनरल्स हैं, मिनरल नेचुरल रिसोर्सेज में मिनरल्स हैं हमारे जो हमें अर्थ से मिल रहे हैं. तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज से प्राइमरी इंडस्ट्रीज डील करती है. मतलब कैसे डील करती है, क्या करती है इनके साथ? तो नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्हें रिप्रोड्यूस करती है या फिर डेवलपमेंट मतलब इनका यूज़ करती है. अगेन कुछ ना कुछ न्यू क्रिएटिव करने इनके साथ यूज़ करके, लाइक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जितने भी हमारे हैं उनसे, रॉ मटेरियल में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, लाइक कोल है हमारा. इसके अलावा हमारे जितने भी मिनरल्स हैं जो हमें अर्थ से मिलते हैं उन सबको दोबारा से यूज़ करती है, उसका प्रॉपर उसको यूज़ करते हैं हम उससे. नेक्स्ट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ माइनिंग्स, फिशिंग ऑपरेशंस, हंटिंग, टम्बरिंग, तो ये सब हमारा फिशिंग इंडस्ट्रीज में आ जाता है. लम्बरिंग. नेक्स्ट आ जाता है जेनेटिक इंडस्ट्रीज. जेनेटिक इंडस्ट्रीज लाइक ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, पॉट्री फार्मिंग एंड फिश फार्मिंग. तो जितनी भी हमारे ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जेनेटिक मतलब जीन्स, जितने भी हमारे जीन्स मतलब जिसमें हम जीन्स का यूज़ करके रिप्रोडक्शन करते हैं और हम उनसे बिजनेस क्रिएट मतलब बिजनेस करते हैं, उन इंडस्ट्रीज़ मतलब प्रोड्यूस करते हैं और उनको सेल करते हैं, तो लाइक प्रॉफिट अर्न करते हैं. तो ये सब इंडस्ट्रीज़ हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ आ जाता है आपका 2 टाइप अगेन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ मीन्स वी मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, creating firm utilizes, like matlab in that industries we produce goods or we process goods while change into फिनिश्ड गुड्स. मीन्स हम गुड्स को इतना चेंज करते हैं, इतना उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि हम उसे एक यूटिलाइज फॉर्म में लेकर आते हैं. नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन करना मतलब कुछ बनाना, लाइक डैम, बिल्डिंग, ब्रिजेस, ईटीसी. तो ये सारी इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आ जाता है. मैन्युफैक्चरिंग अगेन फर्दर डिवाइड इनटू 4 टाइप, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड असेंबलिंग इंडस्ट्रीज. एनालिटिकल इंडस्ट्रीज वी एनालाइज मीन्स वी सेपरेट एलिमेंट्स फ्रॉम द सिंगल एलिमेंट, लाइक हम पेट्रोल डीजल जितना भी हमारा है सेम है, पेट्रोल से डीजल भी निकाल रहे हैं, ग्लीसरीन पेट्रोलियम से ग्लीसरीन वगैरह ये सब निकालते हैं. तो सिंगल प्रोडक्ट से, सिंगल मिनरल से बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करना. नेक्स्ट सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स, सीमेंट, टेक्सटाइल वगैरह. नेक्स्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्स series of activity like sugar and papers. Assemble different components like television, car, computer, etc. So these are the types of manufacturing industries. Next, commerce, it includes all the activities which are concerned with removing all the hindrance in the movement of goods फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द कंज्यूमर. कॉमर्स क्या होता है? इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो जितनी भी दिक्कतें, हिंड्रेंस मीन्स प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें दूर करता है इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स की मूवमेंट को लगातार होने देता है, जिससे कि मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक गुड्स इजीली पहुंच जाए. तो कॉमर्स डील करता है विद ऑल द एक्टिविटीज़ which are concerned with removing all the hindrance in the movement of goods from manufacturer to consumer. It includes the following activities. Commerce में 2 activities आती हैं, first industries and trade. Industries we discuss. नेक्स्ट इज ट्रेड. इससे पहले हमने सेकेंडरी इंडस्ट्रीज पढ़ लिया है. इसमें एक और इंडस्ट्रीज आती है, दैट इज टर्शरी इंडस्ट्रीज. टर्शरी इंडस्ट्रीज डील विद द सर्विसेज. टर्शरी इंडस्ट्रीज सर्विसेज के साथ डील करती है. हम ऑलरेडी मैंने अभी बताया भी था, जो कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है. सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग फैसिलिटीज़. तो ये सारी चीज़ें टर्शरी इंडस्ट्रीज में आ जाती है. ये हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट आ जाता है कि ट्रेड.
ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज लाइक व्यापार. It deals with of two type, internal trade and external trade. Internal trade means wholesale retailers, and external like export, import, or interport. Trade entry port. Trade means exchange of goods and services between seller and buyer with profit motive. ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग. किसके बीच में? सेलर एंड बायर के बीच में. तो ये हमारा आ जाता है आपका ट्रेड की डेफिनेशन. नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ऑक्सिलरीज मतलब मीन्स जितनी भी सर्विसेज होती हैं. फर्स्ट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग. तो दीज आर द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. तो in my next video we discuss what is internal trade, external trade, and also auxiliaries to trade, and also we discuss about the risk, business risk, and what is the role of profit in business, and also objective of business. So these are the topics which we discuss in my next video. Thank you so much, and if any query you can ask me. Thank you.